Hello everyone, I am Hemlata Lydia and today we are going to discuss poem number 6 of First Flight Amanda, which is written by Robin Klein. This poem revolves around a girl whose name is Amanda, and here the poet wants to tell us the importance of the upbringing of the children. Okay, so at point of time each child feels that उसकी जो freedom है वो control कर ली गई है, उसको बहुत सारे instructions मिल रहे हैं from the parent, and the child feels that उसकी जो freedom है वो curtail है, वो limited है. So similarly this child Amanda, she also feels that उसकी जो mother है, she continuously she keeps nagging her for her mistakes, and she continuously gives her instructions. So how does Amanda feels when she gets instruction from her mother? Let us read this poem and understand an explanation, a detailed explanation, as well as the word meaning and literary devices. So in the very first beginning of this poem, the set of instruction which Amanda gets from her mother is, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So here in the very beginning, her mother is stopping her from biting her nails, and she asks her to sit straight. She asks her not to bend her shoulders. So the word meaning here, hunch means she has bent her shoulders, hunch means bend. So her mother asks her not to bend her shoulders, and here slouching means she is sitting lazily. So sit in a lazy manner. Her mother does not want her to sit in a lazy manner. She wants her to sit straight and look active. So फर्स्ट थ्री लाइन्स में उसकी मदर उसको स्टॉप कर रही है कि तुम ये नेल्स मत खाओ. अग्री, नेल्स बाइट करना इट्स नॉट अ गुड हैबिट. शोल्डर्स को बेंड करके चलना इट्स नॉट अ गुड हैबिट. और इस तरह से लेजीली मूव करना इज नॉट अ गुड थिंग. वी शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट. सो हर मदर इज नो वेयर रॉन्ग, बट द वे, जो उनका तरीका है, जो उनके इंस्ट्रक्शन करने का तरीका है, शी इज डूइंग ऑल, शी इज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस इन इरिटेशन. शी इज एंग्री विद हर. सो यहाँ पर पोएट बार बार उसका जो नाम रिपीट हो रहा है, अमेंडा. In each line you can see that the name of Amanda is repeated, and there is a sign of exclamation that shows कि उसकी मदर कितनी ज़्यादा इरिटेटेड है, कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, एंड शी वांट्स कि उसकी बेटी कि ये जो भी हैबिट्स हैं वो जल्दी से वो ठीक हो जाए, मतलब उसके अंदर ऐसी कोई हैबिट नहीं रहे. बट इट इज़ नॉट सो. आप एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो. इट विल टेक सम टाइम. अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है किसी के भी अंदर, बिकॉज वी ऑल हैव फ्लॉज, हम सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, बट हम उसको एक दिन में ओवरनाइट ओवरकम नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स टाइम. सो लेट अस सी दी लिटरेरी डिवाइस. यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप देखिए कि जो फर्स्ट टू लाइंस है वो सेम वर्ड से बिगिन हो रही हैं. दैट इज डोंट, डोंट, डोंट बाइट, डोंट हंच. सो सेम वर्ड से अगर दोनों लाइंस में सेम वर्ड है और बिगिन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. क्या होता है वो? एनाफोरा. यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर एलिट्रेशन इज ऑल्सो देयर, repetition of s sound in this line. So ये alliteration as well as आप यहाँ पर देख सकते हो assonance, जहाँ पर vowel sound o जो है उसका repetition हो रहा है.
this is assonance. Okay. So let me write here, this is assonance. All right. So anaphora है यहाँ पर, alliteration भी है, assonance भी है. Let's see some more literary device like rhyming scheme. Rhyming scheme जो है वो क्या है? A B A. ओके, A बिकॉज लास्ट के जो है एमेंडा हमने देखो राइम कर रहे हैं, दे आर राइमिंग विद ईच अदर. A B A. ओके, एंड इसके अंदर रिपीटिशन भी है, लास्ट लाइन के लास्ट में अमेंडा, सो देयर इज अ रिपीटिशन ऑल्सो ऑफ द सेम वर्ड. एंड एलिट्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. Now here you can see this phrase is in bracket. So ये जो bracket है ये इसको parenthesis बोलते हैं. यहाँ पर bracket में क्यों लिया है पोएट ने? Poet wants to express that the thoughts of Amanda in through these phrase. इस phrase के हिसाब से जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि अमेंडा उसकी मदर से इंस्ट्रक्शंस के बाद वो किस तरह से सिचुएशन को इमेजिन करती है, किस तरह से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एंटर कर जाती है, किस तरह से एस्केप कर जाती है उस हार्श रियलिटी को. देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग blissfully. Now languid means relaxed, languid means relaxed, and emerald sea. सी तो आप सब जानते हैं, बट एमरल्ड एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है विच इज ऑफ ग्रीन कलर. तो यहाँ पर सी के आगे एमरल्ड लगाया, मतलब पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि सी कौन से कलर की हो? ग्रीन कलर की हो. एंड वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. सोल मीन्स ओनली मी वन, एंड इनहेबिटेंट मीन्स रेसिडेंट. मरमेड कैरेक्टर है जो हाफ फिश होता है और हाफ अपर पार्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है, विमेन का, और जो लोअर पार्ट है वो फिश टेल होती है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ड्रिफ्टिंग मीन्स टू ड्रिफ्ट, मूव करना, एंड ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली. सो हियर these lines which is in bracket that shows the imagination, the thoughts, the views of Amanda, because after getting instructions from her mother she enters into her own imaginary world and she thinks that there is a languid sea, ek aisi sea ho which is relaxed, right, and which is of green color, एंड वहाँ की जो सोल इनहेबिटेंट हूँ, मतलब मैं वहाँ पर अकेली हूँ और कोई क्रीचर ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली हूँ. एंड आई वुड बी लाइक अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. उस पानी के ऊपर मैं आराम से लेजीली मैं ड्रिफ्ट कर रही हूँ, हैप्पीली पानी के अंदर हूँ. सो दिस इज व्हाट शी थिंक्स इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर मदर. Let's move to the literary device. Here you can see that imagery is there, क्योंकि हमें पोएट ये इमेजिन करा रहा है कि वो किस तरह से ड्रिफ्ट करना चाहती है, किस तरह से लेजीली वहाँ पर पानी के अंदर रहना चाहती हैं. एंड यू कैन सी पोएट हैज़ यूज मेटाफर ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पर उसने सी को क्या बताया? एमरल्ड सी. एंड यहाँ पर ग्रीन कलर को रेफर किया है विच इज़ जो स्टोन का कलर भी ग्रीन होता है, तो वहाँ पर मेटाफर को यूज किया है. एज वेल एज पोएट हैज यूज्ड अल्यूजन. मरमेड क्योंकि रियल कैरेक्टर नहीं है, दैट इज कैरेक्टर विच इज इन फेरी टेल. ओके, सो पोएट ने ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं इन द लाइन्स अबव. नाउ लेट्स मूव टू द next stanza where she gets a new set of instruction from her mother. What she says, let's see. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought
I told you to clean your shoes, Amanda. Now here she gets different kind of instruction. Her mother says that she reminds her कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, हैव यू डन योर होमवर्क, और क्या तुमने अपना रूम को क्लीन कर लिया है, हैव यू क्लीन योर रूम, हैव यू यू नो क्लीन योर शूज. सो ऑल दीज इंस्ट्रक्शन, वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो चेंज हो गए, उनका शिफ्ट चेंज हो गया, और यहाँ पर द इंस्ट्रक्शंस आर अपॉन अमेंडा एंड ऑन हर सराउंडिंग. नाउ व्हाट डज शी थिंक्स, कैसे वो अपनी वापस से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है, एस्केप कर जाती है, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू गेट इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली फ्रॉम अदर फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी स्मॉल थिंग. एंड she starts thinking, which is very serious thing, we need to think over it, कि अमेंडा इतनी छोटी है, इतनी इनोसेंस है कि वो ऐसा सोचने लगती है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली उसकी मदर इंस्ट्रक्ट करती जा रही है, बार बार हर चीज़ पर उसको, उसकी हर एक्शन पर उसको जज किया जाता है. तो कैसे वो अपनी इनोसेंस, अपने बिल्कुल ही ना समझी की वजह से वो क्या सोच लेती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. Now here जो गर्ल है, क्योंकि उसकी मदर उसको बोल रही है कि तुमने अपना रूम साफ किया, तुमने अपना शूज साफ किया, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं, तो वो क्या सोचने लगती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ. ऑर्फन मीन्स हुज पेरेंट्स डाइड, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं. तो वो ये सोचती है कि मैं ऑर्फन हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं वॉन्डर कर रही हूँ स्ट्रीट में एमलेसली, एंड जो डस्ट है, जो ज़मीन है, उस पर मेरे पैर के निशान बन रहे हैं, बिकॉज आई एम वॉकिंग बेयर फीट, मैं विदाउट शूज़ उस पर चल रही हूँ, तो मैं, मेरे जो पैर के पैटर्न हैं, जो निशान हैं, वो उस डस्ट पर पड़ रहे हैं. और ये जो साइलेंस है वो गोल्डन है, और जो फ्रीडम है वो स्वीट है. क्या बोलती है अमेंडा, कि ये जो साइलेंस है, जो मेरी मदर मुझे, मेरे पेरेंट मुझे बार बार हर चीज़ में टोक रहे हैं, वो वहाँ पर कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम एन ऑर्फन, और मैं नंगे पैर चल रही हूँ, डस्ट पर अपने पैरों के निशान छोड़ रही हूँ, और ये जो साइलेंस है, जो मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा, वो मेरे लिए क्या है, दैट इज गोल्डन, एंड वो जो फ्रीडम है वो मेरे लिए क्या है, स्वीट है. सो मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता ही दिए हैं. हश्ड मीन्स क्वाइट एंड स्टिल प्लेस. लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस हियर. यहाँ पर फिर से रिपीटेड यूज हो रहा है, एनाफोरा है. उसकी मदर बिगिनिंग में ही क्या बोल रही हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम. सो यहाँ पर the line begins with the same word did, so that is anaphora. Okay, and next literary device है assonance, जहाँ पर vowel sound o का repetition है. आप thought, told, you, your, shoes, यहाँ पर o sound repeat हो रहा है, so that is assonance. एज वेल एज रिपीटिशन आप हर लाइन में देखेंगे, क्योंकि अमेंडा हर लाइन में, हर लाइन के हर इंस्ट्रक्शन के बाद उसकी मदर अमेंडा बोल रही है. सो रिपीटिशन है यहाँ पर. और यहाँ पर पोएट ने मेटाफर का भी यूज़ किया है, क्योंकि साइलेंस को क्या बताया है, गोल्डन, और फ्रीडम को क्या बताया है, स्वीट. सो पोएट हैज़ यूज्ड metaphor. So all these literary devices are there in these above lines. Let's move to the next stanza. Now let's see what set of instructions she gets from her mother. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you? So इस लाइन में भी आप देख सकते हैं कि उसकी मदर कितनी गुस्सा है, उसकी मदर कितनी एंग्री है, क्योंकि जब भी उसकी मदर उससे कुछ कहती है, अमेंडा शी यूज टू लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, और वो इतना भी बॉदर नहीं करती कि वो अपनी मदर की तरफ देखे. तो उसकी मदर इस चीज़ पे और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, और उसको बोलती है कि जब भी मैं तुमसे बात करूं, तुमको मेरी तरफ देखना है.
क्या बोलती है उसकी मदर, डोंट ईट चॉकलेट्स। उसकी मदर उसको चॉकलेट खाने के लिए स्टॉप करती है, उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं और उसको रिमाइंड कराती हैं कि क्या हुआ था लास्ट टाइम तुमने चॉकलेट खाया था तो तुम्हारे फेस पर एक्ने हो गया था। सो इट मीन्स दैट हर मदर वांट्स हर टू टेक केयर ऑफ हर ब्यूटी, हर आउटर अपीयरेंस, हर फिजिकल अपीयरेंस फ्रॉम दिस टेंडर एज, और वो उसको स्टॉप करती हैं टू ईट चॉकलेट, उसको चॉकलेट खाने के लिए मना करती है और उसको एक पुराना बात याद कराती है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने जब पिछली बार चॉकलेट खाई थी तो तुम्हारा एक्ने आ गया था। सो एक्ने इज अ काइंड ऑफ पिंपल जो फेस पर आते हैं इन टीन्स। सो आफ्टर लिसनिंग दिस क्या होता है, अमेंडा फिर से अपने ख्यालों में, अपने इमेजिनेशन में एस्केप कर जाती हैं और जो वर्ल्ड की हार्श रियलिटी है उससे दूर होकर वो क्या सोचने लगती हैं, आई एम रिपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। Let us discuss the word meanings. Rapunzel, it's a character which is in fairy tale, German fairy tale में character है Rapunzel, और tranquil means quiet, calm, और rare मतलब uncommon। अब अपने आप को कैसे इमेजिन करती हैं अमेंडा, अमेंडा कहती है कि मैं रिपंजल हूँ, मैं उस फेरी टेल की तरह, उस फेरी की तरह हूँ जो एक टावर में थी, एंड वो उसको उस टावर में कौन ले गया था, शी वॉज बीइंग कैप्टिवेटेड बाय अ विच ओवर देयर, और उस फेरी टेल के, उस फेरी के, रिपंजल के बहुत ब्यूटीफुल हेयर थे, लॉन्ग गोल्डन हेयर थे, और वो उस टावर के नीचे जब अपने बालों को डालती थी तो उसके बालों को क्लाइंब अप करके विच उस तक पहुंचती थी, उस तक ऐसे कोई नहीं पहुंच सकता था। सो दिस इज हाउ व्हाट शी इमेजिन्स, और वो अपने वर्ल्ड में इमेजिन करती है कि मैं रिपंजल हूँ एंड आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है। उस टावर में विच इज़ वेरी हाई, वहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत पीसफुल होगी, बहुत काम होगा, बहुत शांति होगी वहाँ पर, एंड आई विल सर्टेनली नॉट लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। जिस तरह से रिपंजल अपने बालों को नीचे डालती थी विच को ऊपर आने के लिए, बट यहाँ पर अमेंडा कहती है कि आई डू नॉट वॉन्ट एनी बडी बिसाइड मी, सो मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं डालूंगी ताकि कोई ऊपर मेरे पास आ सके, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन। शी इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर, की अगर दूसरे मेरे आसपास हैं तो वो क्या चाहते हैं, दे ऑलवेज वॉन्ट मी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देम, मुझे मेरी मर्जी से, मेरी विश के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा है। सो दैट इज द रीजन शी वॉन्ट्स कि मैं बिल्कुल अकेली रहूं। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है अल्यूजन, क्योंकि पोएट ने किसका यूज किया है, एक फेमस कैरेक्टर, फेरी टेल कैरेक्टर का यूज किया है, दैट इज रिपंजल, जिसके गोल्डन ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर हैं। पोएट ने एजोनेंस का भी यूज किया है, पोएट ने जहाँ पर साउंड, वॉवल साउंड यूज होते हैं एजोनेंस में, कौन सा साउंड यूज हो रहा है, ई और ओ का, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू you. So there is assonance as well as you can see consonance is also there because sound R, consonant का sound R repeat हो रहा है, okay, care, hair, यहाँ पर R sound repeat हो रहा है, and in all the stanza you can see there is a repetition of only one thing, that is the name of the Amanda, that shows the frustration and the anger of her mother. Okay, let's move to the next stanza which says, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now, इसमें उसकी मदर और गुस्सा हो जाती है और उसको क्या बोलती है कि तुम सल्क इस तरह से, ये जो तुम्हारा यू आर लुकिंग इन अ वेरी बैड मूड, तो ये बंद करो, इस तरह से शो करना बंद करो, स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मीन्स
be in a good mood, you should be in a cheerful mood. तुम ये जो अपना ऐसा मूड दिखा रही हो, इस तरह से बिहेव कर रही हो, इसको स्टॉप करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी. मूडी मतलब कभी तुम वो ऐसे मूड में चले जाते हो जिनका मूड अनस्टेबल होता है, उनको मूडी बोलते हैं, राइट? मतलब कभी अच्छा, कभी एकदम से बुरा, अनसर्टेन सा मूड रहता है. सो यहाँ पर उसकी मदर उसको बोलती है कि यू आर सो मूडी अमेंडा, आप इतने मूडी हो, तुम्हारा जो मूड है वो बहुत ही अनस्टेबल है. एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. नैग्ड मतलब मैंने तुमको कुछ कहा है, कुछ ऐसा कहा है जिसको तुम्हें बुरा लगा है. सो यहाँ पर एनीवन मीन्स हर मदर इज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, पीपल इन द सोसाइटी. यहाँ पर उनकी बात कर रही है कि कोई भी ये सोचेगा कि मैंने तुमको किसी चीज के लिए टोका है, रोका है. सो स्टॉप दिस, ये इस तरह का बिहेव मत करो. यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है स्टॉप दैट सल्किंग. स साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन देख सकते हैं आप. एज वेल एज मैंने आपको बोला है कि हर स्टैंजा में आप देखोगे एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज अमेंडा. दैट शोज फ्रस्ट्रेशन ऑफ हर मदर. सो इस पोएम में बेसिकली पोएट क्या बताना चाह रहे हैं? पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि इट्स नथिंग हार्म, अगर आप अपने बच्चों में, अगर आप अपने चिल्ड्रन में गुड हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं, दैट दे शुड बी इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, दे शुड बिहेव वेल, उनके अंदर अच्छे मैनर हो, अच्छा बिहेव करे, अच्छा लगे. सो देर इज नथिंग हार्म. बट इस तरह से जो कंटिन्यूसली नैगिंग होगी, जो कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, एंड दैट टू इन एंगर, दिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड. अमेंडा के साथ भी गुड नहीं हो रहा है. वो क्या करती है? वो अपनी दुनिया में इस हार्श रियलिटी से, इस टोका टाकी से वो क्या करती है? अपने आप को दूर कर लेती है और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एंटर कर जाती है, वो एस्केप कर जाती है इस दुनिया से. तो उसको कुछ नहीं हो रहा है. शी इज नॉट गेटिंग एनी इम्प्रूवमेंट बाय द इंस्ट्रक्शन विच शी इज गेटिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स. सो हमें लाइक ऐसी बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी से बुरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. बट पेरेंट्स को बहुत पेशेंस के साथ, लव अफेक्शन के साथ अपने बच्चों को समझाना चाहिए. यू कैन नॉट इम्प्रूव एनीथिंग ओवरनाइट. इट रिक्वायर्स a great deal of patience and love. सो आई वुड से दैट जो पोएट हैं वो भी यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं थ्रू दिस पोएम कि पेरेंट्स आर नो वेयर रॉन्ग. हर पेरेंट की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे को के अंदर अच्छी हैबिट्स हों, अच्छा वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड हो. बट उसके लिए उन्हें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है. वो उनको अपने बच्चे को प्यार प्यार से समझाना है, प्यार से काउंसल करना है. गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आप अचीव नहीं कर सकते जो आप चाहते हो उससे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. थैंक यू.